یہ کانفرنس ہمیں یہ بتائیں کہ سرخ فیتے کو کس طرح ختم کرنا ہے، جس کو میں انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر ختم کرنا چاہتا ہوں، پرمٹ راج کو کس طرح ختم کرنا ہے، اور NOC راج کو کس طرح ختم کرنا ہے۔ یہ جو دفتروں کے چکر اب جناب جا رہے ہیں منسٹری پاور میں، اب جا رہے ہیں جناب منسٹری آف انڈسٹریز میں، اب جا رہے ہیں فائنینس میں، اب جا رہے ہیں، اب پھر سفارش کروا رہے ہیں فلاں حضرت کی، فلاں ایکسپرٹ کی، فلاں، یہ چکر ختم ہونا چاہیے۔ قوم کو، من حیث القوم اٹھنا ہوگا اپنی ذاتی پسند اور ناپسند سے، اختلافات کو خدا کے لیے اپنی نسلوں کے آگے شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہونا ہوگا، اور ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے چند فیصلے ایسے کرنے ہوں گے جن کو مدتوں تک کوئی حکومت آئے جائے اس میں تبدیلی نہ کر سکے، ماں سوائے ملک کی مزید بہتری، ترقی اور خوشحالی کے لیے۔ ہماری اصل منزل خود انحصاری ہے، ملک کو مستحکم بنانے کے راستے پر گامزن ہیں، ملک میں وسائل اور ہنرمند لوگوں کی کمی نہیں، اربوں کا خزانہ دفن ہے مگر ہم نے ایک ڈھیلا نہیں کمایا اور اربوں روپے ضائع کر دیے۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، بولے اگر کام کی نیت ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں، ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا، ریڈ ٹیپزم، پرمٹ راج اور NOC کے چکروں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان اور سب چیزیں چھوڑ دے اور صرف اکنامک گروتھ کی طرف چلے جائے، انکلوسیو اور سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی طرف چلے جائے، تو یہ ہدف حاصل کرنا مشکل نہیں ہے۔ جس دن ہم من حاصل قوم یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہم کو انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ ہدف ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس مشکل کے اندر بھی جو فائنینشلی اتنی مشکل تھی، اس میں بھی انہوں نے ایک اسکیم نکالی ہے، سستا، جب پیٹرول ہم نے مہنگا کیا کہ سستا پیٹرول اور سستے ڈیزل کے نام سے، جس کے تحت ہم نے 60 لاکھ پاکستانی گھروں کو یہ دعوت دی کہ اپنے آپ کو 786 پہ فون کر کے رجسٹر کرائیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں سخت معاشی حالات میں بھی وزیر اعظم نے غریب عوام کو ریلیف دیا، دوسرے ممالک سے اگر قرضہ لینا ہے تو خودداری کی بات نہ کریں، جو مشکل فیصلے کرنے تھے کیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہمارا مقصد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، 10 لاکھ افراد سستا پیٹرول اسکیم پر رجسٹر ہو چکے، 4 بڑے خساروں کے بعد 5ویں خسارے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدے کے امکانات بڑھ گئے، IMF سے میمورنڈم آف اکنامکس فائنینشیل پالیسی کا مشترکہ 7واں اور 8واں جائزہ موصول۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بولے پاکستان نے قرض پروگرام کا حجم بڑھا کر $8 ارب کرنے کی درخواست کر رکھی ہے۔ پاکستان $6 ارب کے قرض میں سے $3 ارب پہلے ہی حاصل کر چکا ہے، قرض کی مدت میں توسیع کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ غریب عوام پر ایک اور ظلم، 1 جولائی سے LPG قیمت میں اضافہ، گھریلو سلنڈر کی قیمت 106 روپے فی کلو کے اضافے سے 2581 روپے ہو گئی، کمرشل سلنڈر کی قیمت 408 روپے کے اضافے سے 9988 روپے ہو گئی۔ گلگت بلتستان میں فی کلو LPG کی قیمت 270 روپے تک پہنچ گئی۔ گرمی کی شدت بڑھنے سے ملک میں مہنگی ترین بجلی کی قلت بھی بڑھ گئی، شارٹ فال 7500 میگا واٹ تک پہنچ گیا، مختلف علاقوں میں 16 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری، پانی کی بھی شدید قلت، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل ٹویٹ میں بولے کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر لوگ سراپائے احتجاج ہیں، کسی ایک شعبے کی بھی فاسسٹ حکومت ٹھیک نہیں کر سکی۔ لوڈ شیڈنگ پر کراچی کے شہریوں کا صبر کا پیمانہ لبریز، ماڑی پور میں پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، خاتون جاں بحق، اہلکار زخمی، پولیس نے خاتون کی موت طبی قرار دے دی، مذاکرات کے بعد احتجاج ختم۔ ابو الحسن اصفہانی روڈ پر بھی شہریوں کا احتجاج، داؤد پور روڈ اور سعود آباد میں بھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرے، شہریوں نے سڑک پر ٹائر جلا کر ٹریفک معطل کیے رکھی۔
मुकम्मल तौर पे ये हुकूमत फेल हो चुकी है। इंटेग्रिटी स्टेटमेंट मिफ्ता इस्माइल साहब ने कौमी असम्बली में जमा कराई है, जिस पे सेक्रेटरी खजाना साहब की भी साइन मौजूद है, और उस पे इन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि मुस्लिम लीग नून के गुज़िश्ता दौर में जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने जो बिजली के कारखाने लगाए वो गलत लगे, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट से जो मायदे थे वो गलत हुए, उनकी वजह से बिजली के निर्खों में जो इजाफा आ रहा है। मुल्क में लोड शेडिंग बहरान शदीद होता जा रहा है। पहले वज़ीर आज़म ने 48 घंटे में लोड शेडिंग ख़त्म करने का ऐलान किया, अब जुलाई में भी लोड शेडिंग का इशारा दे दिया है। रहनुमा PTI उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्क में 7 से 8 हज़ार मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। हमारे दौर में पाकिस्तान रूस से तेल ले रहा था, 80% फीडर्स पर लोड शेडिंग ख़त्म कर दी गई थी। बिजली पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात, बजट के हवाले से उमूर और चेयरमैन नैब की तकर्री पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ML वली खान की सरबराही में ANP के वफ़द की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बड़े इस मुल्क के वो लोग जो 30 साल से करप्शन कर रहे थे वो ऊपर आके मुसल्लत हो जाते हैं, और वो मुसल्लत कैसे होते हैं कि लोगों के ज़मीर ख़रीदे जाते हैं, भेड़ बकरियों की तरह सियासतदानों को ख़रीदा जाता है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक काम किया अब तक, और वो काम ये किया है कि 1100 अरब रुपए के अपने ऊपर जो करप्शन केसेस थे अपने आप को NRO दे के वो माफ़ करवा लिए, और उसके अलावा इन्होंने इदारे तबाह किए हैं ताकि इनकी करप्शन बच जाए। साजिश करके इक़्तिदार में आ गए और कहते हैं कि सब कुछ इमरान खान ने किया। मौजूदा मुल्की हालात के हम ही जिम्मेदार हैं तो हमें इक़्तिदार में रहने देते। चेयरमैन PTI इमरान खान का तंज, बोले कोरोना के दौरान पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी, इसके बावजूद हमने आवाम को रिलीफ दिया। हमने अपना पेट काट कर डीजल, पेट्रोल और बिजली महंगी नहीं की। अभी तक लोगों को बिजली के बिल आने हैं, ये सिर्फ अपनी चोरी बचाने के इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, सियासी और माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला। कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022, इलेक्ट्रिक पंखों के तवानाई से मुतालिक म्यार मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली की भी मंजूरी दे दी। जो वीज़ा के लिए दरकार दस्तावेज़ हैं उसमें भी दरख्वास्त कुंदा की फ़ोटो, पासपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो रजिस्ट्रेशन है, एम्प्लॉयमेंट लेटर शामिल होंगे, जबकि तौसी की सूरत में सिर्फ एंट्री वीज़ा पेज अजाफी तौर पर दरकार होगा। ये हदायत जारी कर दी गई है इस मंजूरी के बाद के नादरा को फौरी तौर पर इस ऑनलाइन सिस्टम के अंदर जो चेंजेस हैं और इसको ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर लाया जाए, इसके निज़ाम में तब्दीली को यकीनी बनाने के लिए काबीना की तरफ से हदायत जारी कर दी गई है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला किया है, जिससे वस्ती एशिया अफगानिस्तान में तिजारत को तक़वियत मिलेगी। मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का एजेंडा भी मंजूर कर लिया गया। नादरा को ऑनलाइन सिस्टम की तब्दीलियों के लिए इक़दामात की हिदायत दी है। इक़्तिसादी राबिता कमेटी के 22 जून के फैसलों की भी तौसीक़ कर दी गई है। हुकूमती इत्तेहादी जमात BAP ने चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। खालिद मक्सी ने जस्टिस रिटायर्ड अहमद खान लाशारी और जस्टिस रिटायर्ड गुलाम आज़म कंबरानी के नाम दिए। खालिद मक्सी कहते हैं कि हमारी पार्टी हुकूमत के साथ मजबूत इत्तेहादी के तौर पर खड़ी है। दोनों नामजद अफराद कानूनी प्रैक्टिस, प्रोसिक्यूशन और आला अदलिया का वसी तजर्बा रखते हैं। नामजदगियों पर मुस्बत गौर किया जाए। हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के मामले पर फैसला बगैर किसी दबाव के देंगे।
25 मुनहरिफ अरकान को निकाल कर दोबारा वजारत आला पंजाब के लिए वोटिंग करा लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने हमजा शहबाज के इलेक्शन और हलफ के खिलाफ PTI और परवेज इलाही की अपीलों पर समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को 1 दिन की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। इलेक्शन अच्छी बात है, इलेक्शन लड़ेंगे, 100 दफ़ा भी इलेक्शन होगा, अदालत का फैसला पूरा आ लेने दें तो इंशाल्लाह बिल्कुल लड़ेंगे हम इलेक्शन। कि साहब अपोजिशन आपके जो आपसी इख्तलाफात को लेके बड़ी कह रही है कि ये आपस में झगड़ पड़े हैं, 2 जमातें बन गई अब काफ लीग की। बिल्कुल गलत सोच, गलत ख्वाहिशात, वो तो हमेशा रही हैं शरीफों की। तो सर आपस में एक ही है, काफ लीग एक ही है 100%। तो सर और एक रहेगी भी इकट्ठे। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं बजट सिर्फ पंजाब असेंबली में पास होगा जो आईनी और कानूनी होगा। अच्छी बात है, अदालत का पूरा फैसला आने दें, पूरा इलेक्शन लड़ेंगे। काफ लीग में इख्तलाफात की बातें बिल्कुल गलत हैं, एक ही है काफ लीग। चौधरी शुजात ने हमजा शहबाज की हिमायत करने के नून लीग के दावे की तरदीद कर दी। बोले साफ अल्फाज में कहता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही ही हमारे उम्मीदवार हैं। हमारे अरकान चौधरी परवेज इलाही को ही वोट देंगे। गलत अफवाहें फैलाने की कोशिश ना की जाए। मुस्लिम लीगी अरकान पंजाब असेंबली ने हमेशा पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की। मैंने कभी गलत बयानी नहीं की, साफ गोई का दर्स दिया है। दोनों हुकूमती जमातें हैं, जितनी ऑपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने तो चाहे PTI है, GDA है, जमात इस्लामी है, उन्होंने तो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया है। ये सारे लोटे जिनको टिकट दिया है ये सारी उम्र के लिए नाअहल होने चाहिए। ये गैर आईनी और गैर कानूनी इलेक्शन है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, क्योंकि 63A 63A का फैसला अभी आना है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कल हमजा शहबाज के मामले पर फैसला आने वाला है। हमजा शहबाज का वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम करार दिया जा सकता है। मुमकिन है लाहौर हाई कोर्ट वज़ीर आला के दोबारा इंतखाब का हुक्म दे। हमजा शहबाज आईनी वज़ीर आला पंजाब नहीं हैं। लगता है पंजाब में नया आईनी बहरान जन्म लेने वाला है। शेख रशीद बोले लोटों को नाअहल होना चाहिए, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। नून लीग ने जिन लोटों को टिकट दिया सब नाअहल होने चाहिए। पंजाब असेंबली की खुद मुख्तार हैसियत दोबारा बहाल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर 1997 में तरामीम मंजूर कर ली गईं। सेक्रेटरी इजलास बुलाने और बर्खास्त करने की नोटिफिकेशन जारी करने का मजाज होगा। सेक्रेटरी असेंबली ही इस ज़मन में गजट नोटिफिकेशन जारी करेगा। पंजाब हुकूमत ने पहले ऑर्डिनेंस फिर एक्ट पास करके सेक्रेटरी असेंबली से इख्तियार वापस लेकर सेक्रेटरी कानून को दे दिया। कमेटी ऑफ होल हाउस कायम करने की भी मंजूरी दे दी गई। तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उसने बिल्कुल एक तबाह हाल पाकिस्तान सामने खड़ा किया। उसने बेरोज़गारी में शिद्दत से इजाफा किया। कोई डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स पूरे सूबे में कहीं नहीं थे। किसी जगह पर किसी शोबे में कोई बेहतरी नहीं थी। किसी जगह पर गुर्बत में कहीं कोई कमी नहीं थी। एक मुकम्मल तबाहाली का मंजर था। वज़ीर पंजाब मलिक अहमद खान मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के मुतरफ। बोले बैड गवर्नेंस और महंगाई गुज़िश्ता हुकूमत के तोहफे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ी हैं। गुज़िश्ता हुकूमत इकॉनमी को ज़मीन बोझ करके गई। गुज़िश्ता 4 साल से पंजाब में कोई तरक्की नहीं हुई। तहरीक इंसाफ ने इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की। अदलिया और इलेक्शन कमीशन का फैसला हक में आए तो ठीक, ना आए तो गलत। मरासले पर कहानी तराशी गई।
सिंध पीपल्स डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस की चीन से मजीद 100 बसेस कराची बंदरगाह पहुंच गईं। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन बोले 1 जुलाई को रूट 2 पर लाल बसें दौड़ती नजर आएंगी। 2 माह के अंदर कराची के तमाम 7 रूट्स पर बसेस चलाई जाएंगी। कराची के शहरियों से किया गया वादा पूरा करने में तेजी से काम किया जा रहा है। बहुत जल्द औरंगी के शहरियों के लिए ऑरेंज लाइन का भी आगाज कर दिया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का जुडिशल कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान के नाम खत जुडिशल कमीशन के इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि जुडिशल कमीशन के 2 इजलास रखे गए जिनमें नए जज साहिबान के नामों पर गौर होगा। मैं भी जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हूं और छुट्टियों पर हूं। जुडिशल काउंसिल ये इजलास छुट्टियों से पहले भी तलब कर सकता था। इस हवाले से तहरीरी आगाह किया जा रहा है। खत का मतन। बरतानवी सिख सिपाहियों के 12 रुकनी वफ्द की GHQ आमद। आर्मी चीफ से बरतानवी वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। पाकिस्तान में मजहबी सयाहत के फ़रोग़ की ज़रूरत को तस्लीम करते हैं। करतारपुर राहदारी मजहबी आज़ादी और हम आहंगी के अज़्म का अमली मज़हर है। आर्मी चीफ की बरतानवी वफ्द से गुफ्तगू। वफ्द ने लाहौर वाहगा बॉर्डर पर परचम कुशाई की तकरीब देखी। किला लाहौर, मज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद का दौरा किया। और पाकिस्तान में एक बार फिर क्रिकेट के मैदान आबाद होने को तैयार। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल जारी कर दिया। कीवीज टीम रवां साल दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान के साथ 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। कीवीज टीम अगले साल अप्रैल में दौरा पाकिस्तान का भी दोबारा से शेड्यूल देगी। दोनों टीमों में 5 वनडे और 5 T20 मैचेस शेड्यूल हैं।